Well, Gori, captain of Gori Young Boys, Pandeshwara, the pacing batsman Tawfiq Mudshedde, in the first delivery. They started with a very good ball. Now he is asking for the review. ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಗೆ ರಾಯಲ್ ರೇಂಜರ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದ ಶಮೀರ್ ರವರನ್ನು ನಾವು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಶಮೀರ್ ರಾಯಲ್ ರೇಂಜರ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರು ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ಆದರದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So the review is successful as that's called as a wide from the third umpire. Just outside the trim line, Arif Jokate just overturned his decision. And also Adam Adbedi, well wishing for in this wonderful cricket tournament. Thank you so much, sir. It is Naufal once again, lovely delivery, almost angling to the pad of the batsman now, just sliding down actually. They taken a single leg by signal from the umpire. Second extra of the innings, 2 on the board for NM Mangalore. Festival atmosphere in this. ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ, ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಇಕ್ರಾ ಗೋಲ್ಡ್ ರವರಿಂದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. What a shot! Absolutely brilliant, Azim. What a fabulous shot. He is a proud member of FCT Puttige. What a brilliant shot, inside out at his best. ಇಕ್ರಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿರಾಜ್ ರವರ ಕೊಡುಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ, ಅದೇ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಬೌಂಡರಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. Yes, hat-trick 4. The batsman will get 5,000 rupees. Hat-trick 6, 10,000 rupees from Ikra Gold. That's on the pad and just flick the ball very neatly into the deep mid wicket. Fayaz Aduru, little bit of fumble to collect the ball. That's why they went for the second run. Good running between the wicket. In this level of cricket, there's a simple error from the fielder. Look at the replay that Fayaz Aduru did not collect the ball cleanly. They went for the second run. Is that direct hit? Yes, direct hit. I think base came little bit late actually. Yes, Bedra Media cameraman had very good job actually. ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ SDPI ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಂಗರಗುಂಡಿಯವರನ್ನು ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಾಳ ಅದ್ದೂರಿಯಿಂದ ನಾವು ಇವರನ್ನು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಇಸಾಕ್ ರವರು ಕೂಡ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಅಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅತಿಥಿ ಮಹಾಶಯರುಗಳು ಆಗಮನದ ಸಮಯ ಇದು. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳದೆ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Bales came little bit late. That 1 extra second allowed the batter to reach the straight. It means batter is safe. Not out signal from the third umpire. Once again lucky escape this time Azim. Naufal, 4th time is Paulie Mark. Oh, that's a good looking shot. Once again brilliant Azim. What a shot. Absolutely magnificent. Second time he played inside out. This is even better. ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಆ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ವಿಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದ ಜಮ್ಶೀರ್ ರವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. What a spectacular catch, Fayaz Aduru, you beauty! Probably
catch of the tournament. Yes, yesterday we seen Mazin taken one brilliant catch for KFC Krishnapura. This one almost similar kind of catch. This time it's Fayaz Aduru. Similar kind of catch. What a brilliant. Tomorrow this catch will viral in the social media, no doubt about it. Full and dive, stretching his both hand near the direction of the ball. Fantastic catch. Absolutely magnificent Fayaz Aduru. Brilliant. Mazin yesterday, today Fayaz Aduru. Brilliant, outstanding catch. The entertaining cameo of Azim come to an end. That's a brilliant catch. So batsman ask review, but there's a clean catch actually. Umpire review actually. You want to check that whether it's landed or not. No, there's a landed only inside the hand of Fayaz. There's a spectacular catch. It means Azim need to be in the pavilion. What a brilliant catch. Absolutely magnificent Fayaz Aduru. ಯೂನಿಫೈ ಬ್ಲೂಸ್ ಇದರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದಂತಹ ಅಲ್ತಾಫ್ ಕೆಸಿ ರೋಡ್ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೌದಿ ಮರುಭೂಮಿಯಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಶುಭಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ತಾಫ್ ಕೆಸಿ ರೋಡ್ ರವರೇ, ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು. ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಿಮಗಿದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. They shuffle their batting order. The one more energetic cricketer in Andhram cricket, Riyaz Modushedde, into the middle for NM Mangalore at number 3 because under floodlight because the form is Riyaz NM having in this season. That's why he promoted at the top of the order. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೇ, ಇದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಸಮಯ. ನಾವು ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ದೂರದ ಊರಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಅತಿಥಿ ಮಹಾಶಯರುಗಳನ್ನು ಈ ಅಂಗರಗುಂಡಿಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆ ಮಹನೀಯರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಬೇಸರ ಮಾಡದೆ ಆ ಅತಿಥಿಗಳಿಗಿರುವ ಆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೇ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಿ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Thank you, Abdul Samad Katipalla. What a productive over this for NM Mangalore. Yes, they lost the wicket of Azim, but they got a 12 run in the first over. The power play against Naufal. Now, the man with the golden catch he taken in the previous, in fact, in the over. Now he bought into the attack for the bowling. Definitely confident will high for Fayaz Adur after that catch. But NM Mangalore, we all knows that after long time in the final, Goryang Boys, Pandeshwar and NM Mangalore playing the cricket tournament. And definitely it's going to be more entertained for every cricket lover because both the team got some quality players in Andhram cricket. Fayaz Aduru from the over the wicket to right-handed batsman Tawfiq facing against Fayaz over the wicket. Beautiful delivery, lovely ball straight into that mid-on and Manish off stop actually. Fire started very well. Dot ball here. Second time is poorly mark. The pack crowd, even in the midnight here. This is the beauty of the Andhram cricket. A great success. Under the great leadership of Salim Angaragundi. NFC Angaragundi proudly. Oh my goodness! What an acrobatic effort! That's a fantastic work from the fielder Abhilash. The pocket dynamite of Andhram cricket. What a spectacular attempt. If he held that catch, probably best of the tournament. But unfortunately, ball landed safely there. Look at the replay that.
That's why we love one-arm cricket. That's why we love this kind of cricket. What a fantastic effort in the midnight. They're showing a very good body language in the field. Gauri Young Boys Pandeshwara in the air for some time. Look at that, Abhilash. Absolutely magnificent. Brilliant. It is to Thomas Polymark Fayaz from over the wicket to Riaz and just play the reverse sweep very effectively. Vacant area ball hit the flex of Adka. And it came back into the hand of the fielder. Batsman had enough time to take the single. We can see there is a apple ply flex near that declared area. And also a lot of groups they really supported very well for in this wonderful cricket tournament. Thank you, behalf of NFC Angaragundi. Your support is highly appreciated for in this wonderful cricket tournament. This time now Falgori with the brilliant fielding. They are just live wire in the field. Gauri Young Boys Pandeshwara cricketers. Absolutely magnificent. Now ball. It's almost broken maybe that. When Naufal Gori collected, he realized that the ball not in a good condition. That's why they need to change. Yes, look at in a replay that how honestly Fayaz Adur is. He saw this ball is almost lose its shape straight away. Normally bowlers normally not doing that. They want to bowl that with the same ball, but he realized that ball changed its shape. That's why he just given to the hand of main umpire. That's really honest in a cricket. That's why all the cricketers they love Fayaz Adur. He's a wonderful, wonderful cricketer. Beautiful shot straight down the ground. One bounce. There's a chance of catch actually. Fayaz not happy, but that's a very good fielding actually. We don't have the correct view of that because the spectator totally covered that area. We don't know what exactly happened there. After the one bounce only fielder collected that. Packed by the crowd in this midnight. Thank you NFC Angaragundi conducting such a wonderful cricket tournament. Thank you NX Sounds and Lights. They made a night look like a day. Oh, this time what a good fielding. Absolutely brilliant. Good over for Gauri Young Boys Pandeshwara. Fayaz with the brilliant second over. So end of the over number 2. 4 runs came in that over. It means 16 on the board after the completion of 2 over 16 for the loss of 1 wicket for NM Mangalore. So definitely special thanks owner of NFC Angaragundi, in fact president of NFC Angaragundi, Mr. Munir sir. His hard work really paid off here because not an easy job conducting tournament like this. Thank you so much Munir sir. So it is Naufal. Second over of a spell. From the over the wicket, just play the defensive. Quite a conventional way. How confident Riaz is. I want to see that replay before delivering the ball. Look at that. He just shuffled cross. Then he played the defensive stroke with the middle of the bat. Copybook style. A defensive stroke into that short cover. And went for that easy single. This is a confident of Riaz and M. Oh, this time he played the reverse sweep, ball hit the backside of the bat. It went to the short third man, ball hit the flex and came back into the hand of the fielder. And batsman had enough time to take Dhanush there at cover point direction. Abhilash at short cover. Manish at mid on.
and Riaz Gori at backward square leg. ಈ ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಎಂಪೈರ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದ ಫೌಜ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Oh, this time he played a similar kind of shot, but this time just went almost into the hand of Naufal Gori. Even he attempted directed ball missed the stump at the no-strikers end. They completed risky run. One more run added in the total. 3 singles so far in this over. Out of 3 ball, they scored a 3 run, 19 on the board. Good comeback actually from Gori Young Boys Pandeshwara after conceding 12 in the first over. They need a couple of good over. Fayaz bowled really well. Now Naufal 16 plus 3, 19 on the board after the completion of 2.3. 7 over final. It is for Tamis Polymark Naufal. Beautiful delivery. What a ball. What an outstanding delivery. More than 150 km/h. Look at the replay that. No time for Taufik. When he's bring his bat down, ball just sneak between a pad and bat. Lovely delivery from Naufal Gori. Captain leading front. Second wicket for him. 19 for the loss of 2 wicket. In Mangalore, they need a sensible cricket here. Yes, they got a 19 run. Even in the final, anything above 42, definitely dependable with the bowling line attack NM having. But if they make mistake after mistake, that will definitely help for Gori Young Boys Pandeshwara. So far, wonderful comeback. We can see the presence of Fauser, owner of that M Park restaurant, that we can see in the screen of Vidra Media, showing that good view of Impact. ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ಪರಿಸರದ ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಮಾತಾದ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರ ಸಿಗುವ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಆಗಿದೆ ಹೋಟೆಲ್ ಎಂಪಾರ್. ಆ ಎಂಪಾರ್ ಮಾಲಕ ಫೌಜ್ ಈಗಾಗಲೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ಆದರದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So ever dependable Azmal Aladka into the middle. What a fine cricketer. He is a wonderful player in Andram cricket. Such a fabulous batter Azmal. 2.5 completed, 20 for the loss of 2 wicket. Wonderful comeback from Gori Young Boys Pandeshwara. Remember that they conceded 12 in the first over. Next 11 ball, they just conceded only 8 run. Beautiful delivery. Riaz just dealing with the single in every ball. He loves that short cover area. Just pushing the ball. This time almost a textbook style defensive stroke he played and collected easy single. End of the over number 3. 21 for 2. Their scoring rate exactly 7.00. NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಕಳದಿಂದ ಆತ್ಮೀಯ ಸನ್ಮಿತ್ರ ದೀಪಕ್ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೈಟ್ ಗೈಸ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಅದ್ಧೂರಿಯ ಶುಭ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಯೂತ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ, ಕೆನರಾ ಯೂತ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ, ಆಜಾದ್ ಯೂತ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಈ ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನುಮಾನ್ ಹೆವೆನ್, ರಶೀದ್ ಫೈಜಲ್ ನಗರ ಈ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Thank you so much all the cricket lovers. They are well wished. They are watching the match through Vidra Media, especially from Middle East, Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, Kuwait, United Arab Emirates. Especially well wish from Nakis, owner of Rooftech Jubail Industrial Service, Rooftech Katipalla. He really missing in this cricket tournament, but is watching the match in Saudi Arabia through Vidra Media and also well wishing for in this wonderful cricket tournament. Thank you Nakis Rooftech, your wonderful support for in this wonderful cricket tournament. Young Dhanush bought into the attack for the 4th over for Gori Young Boys Pandeshwara. 2 run added in that very first ball in the account of Riaz. Oh, this time just played the reverse sweep very effectively. That's a good option against someone who bowling along with the carpet, especially under floodlight. Sweep and reverse sweep is a very good option. That's the only way you can collect the run in under floodlight against the bowler who bowling that such a quick and along with the carpet kind of delivery. Third time is Polymark Dhanush to Azmal. Actually Azmal double-minded and fielder Naufal Gori missed that ball.
First he tried to play the normal sweep shot, then he saw bowler cleverly bowl outside the off-stump line, open the bat face, just guided into that backward point. When Naufal Gori missed that ball, that allowed the batter to complete that single. One more run added in the total. Score now moves on to 25 for the loss of 2 wicket. This time once again, taken a easy single. So far, match is evenly poised because NM started very well, but after losing the wicket of Azim, until that moment Azim looked like a very solid and composed. Couple of good drive inside out. We seen one into deep extra cover, one into deep cover. He got a couple of boundaries in a very first over. This time he played the sweep shot there, waiting for the umpire signal. I think it's some bat involved there. Yes, it is. Definitely some bat involved. That's why he survived there. Even having the smile on the face of Azmal. Yes, he's showing that that ball hit the glove part of him. That's why batsman umpire said that came from the bat. Actually 27 for the loss of 2 wicket. Over number 4 in a progress. Just play the defensive stroke. How intelligently playing the cricketing shot Riaz actually without wasting any energy. Left with a shuffling cross, shimmy down the track. Then playing the full pace of the bat and collecting easy single. Over number 4 completed. 28 for the loss of 2 wicket. Their scoring rate exactly 7.00. Yes, before going to start of the last 3 over, once again change in the commentary box. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ 3 ಮಹಾನುಭಾವರು ಸೌದಿ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದವರು ಇಮ್ರಾನ್ KFC, ಖಾದರ್ NFC, ಇಮ್ರಾನ್ NFC, ಖಾದರ್ NFC ಹಾಗೂ ಫರಾನ್ NFC. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು. ಯಾಕಂದರೆ ಉತ್ಸಾಹದ ಚಿಲುಮೆಗಳಿವರು. NFC ಗಾಗಿ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದವರು ಇವರು. ಈ ದಿನ ಈ ಕ್ಷಣ ಇವರು ಸೌದಿ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನೊಂದಿಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪಂದ್ಯ. Thank you so much once again, all the well-wisher. Definitely some of the NFC cricketer, they're really missing in this wonderful cricket tournament, but still they're in the midnight watching in Saudi Arabia, and they really supported very well for in this wonderful cricket tournament. Young Shahil brought into the attack, lovely delivery. This time Riaz played that reverse sweep, intended to play on the offside of the wicket. Ball hit the leg by signal from the umpire. It went onside of the wicket and collected easy single. In the single, score now moves on to 29 for the loss of 2 wicket. This time, just play the normal sweep, vacant area, no one has shot mid wicket. It went almost, even Fayaz Addur came almost into that short mid wicket direction and collected the ball. Batsman had enough time to take the single. So far, good over from Shahil, which just conceded 2 runs, including 1 leg by. It means 1 run only will count for his account as a bowler. No, Riaz! This time he missed that trick. 4th time he played a similar kind of shot. This time I think he bowled a slight leg cutter. I want to see that ball actually. Yes, slight leg cutter delivery ball that. Riaz completely missed the delivery after shimmy down the track. Stump out and he's walking back to the pavilion. They lost 3rd wicket here in Bangalore. 30 for the loss of 3 wicket. Now the cash price is increased. Every hat-trick 6, 10,000 rupees. Hat-trick 4, 5,000 rupees from Siraj of Ikra Gold. Shahil, penultimate ball of his over. 4.4 completed. 30 for the loss of 3 wicket. I think he evenly poised at this situation now with the both team. This time he played the reverse sweep, other one out. Oh my goodness. That's a good fielding from Riaz Gori, but Shahil did not collect it on his follow through. Otherwise batsman may be in a trouble. Azhar Malluru. Oh, look at the replay that.
He is in the middle of the pitch when he collected the ball actually. If collected cleanly, directed maybe. And Azhar into the pavilion. Lucky for him, he's still there. 31 for the loss of 3 wicket. Last ball of the 5th over. Oh, this time just played over the head of Riaz Ghori into the deep square leg, going for the second run. I think this time Azmal may be in a trouble. Third square leg umpire signal for the third umpire, but body language of Azmal himself, he knows that he is out. That's why he had a good walk to the dugout at this situation. ಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಅಜರ್ ಮಲ್ಲೂರವರಿಗೆ ಸಿರಾಜ್ ಲಿಮ್ರಾಸ್ ಜುಬೈಲ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಿಂದ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿರಾಜ್ ಲಿಮ್ರಾಸ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಿಂದ ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ, Yes, after the completion of over number 532 for the loss of 4 wicket, 12 legal ball remaining, excluding any extra ball. 12 legal ball. Wait and see how many more they will add to the total. Anything above 45 to 50, definitely good score for NM Mangalore. For that, they need to play sensible cricket. Now Atif into the middle at number 6. Fayaz. What a match he is having with the ball and with the field. He is a live wire in the field. Taken a brilliant catch. Then that second over which considered just 4 runs. He is outstanding bowler. Wonderful all-rounder Fayaz Adduru in underarm cricket. But Atif and Azhar Malloor still there. Azhar Malloor had opportunity. If he hits 6, there is a lot of cash prize for him. Some of his friends offering that cash prize. Siraj. Here is Fayaz for the penultimate over. First ball from the over the wicket to right hand batsman and just swept the ball very fine into that fine leg region. Now that ball hit that there's the two gentlemen there, Sadiq NFC Angaragundi and Yunus Skywalk, and also Impact Restaurant that flex. Fire. Second time is Foley mark from the commentary box and bowling over the wicket to right-handed batsman Atif. First time facing in this innings. Once again, intelligent batting from NM cricketer. They knows that under floodlight getting big shot is a very difficult because power play completed. If they attempted big shot, sometime ball will hang to the fielder's hand. That's why they're playing the sensible cricket. That's a good option also, taking the single in every ball. If they get near to the 45 run in a 7 over, definitely good score. But don't forget about that. Ghori Young Boys Pandeshwara, they have the good tactic, especially they're attacking the power play in form of Prajwal Janardhan and Riaz Ghori. That's why they got succeeded in this season, because of that opening partnership between Riaz Ghori and Prajwal Janardhan. Beautiful delivery, lovely ball, excellent ball. Try to work on the offside, Azhar Malloor, with lazy footwork actually. Footwork is really important. Now he's shadow practicing his shot. But whenever you play in the cover drive, footwork is really important. Front foot should come near the line of the ball. But I could not do that. That's why wicketkeeper Shivaraj collected the ball. One more precious dot ball for Ghori Young Boys Pandeshwara. 1.3 over completed the spell of Fayaz. Just conceded 6 runs. Brilliant bowling from Fayaz Adduru. Last 3 ball remaining of the penultimate over. Oh, this time in the air. Dhanush under it. Easy catch.
even you can see that replay. He went for the sweep shot. Oh, that's almost ball hit the handle of the bat, near to the handle of the bat, top of the bat actually. That's why it's got the edge of the bat, and it went to the hand of Dhanush. He did not make any mistake. One more wicket, wicket number 5 of NM Mangalore. Back to the pavilion now. Who will come at number 7? There. Oh, that's a really surprise that Asif Adur coming at number 7. That's showing out depth in the batting lineup of NM Mangalore. He is the proper opening batsman for any team in Andhra cricket, even for NM Mangalore, but he is coming at number 7. That's showing out depth in the batting lineup of NM Mangalore. Such a quality player, Asif Adur, one of the decent cricketer ever produced in Andhra cricket. He known as a gold of Adur, and such a fabulous player. 2 balls still remaining of the penultimate over. 34 for the loss of 5 wicket. Good comeback from Gori Young Boys Pandeshwara. If you look at the first over of the power play, where they got 12 runs for just 1 wicket. After that, good comeback from the bowlers. It's Shahil, Dhanush, Fayaz, brilliant. Naufal also bowled a very good second over. That's why they are in a very good position in this first innings. But cricket, it's an unpredictable game. Anything can possible. Waiting for the umpire signal. It looked like a wide. Yes, it is. Salt on the Undas. Batsman crossed for the single form of the byes. 2 wide run actually added in the account of the batting team. 35 for the loss of 5 wicket. So this time just played into the short third man and waiting for the umpire signal. Single declare actually, signal from the umpire. So the last ball remaining of the penultimate over of the first innings. 37 for the loss of 5 wicket. We can see the flex of Wahab sir, owner of the Wafa Enterprises. Inayat Ali sir, General Secretary of KPCC. Mr. Yunus from Skybox. Sadiq, NFC Angaragundi. Oh, beautiful delivery. I think inside edge of the bat. Then hit the stump there. 1 more wicket back to the pavilion. This time Asif Adur. Yes, inside edge and gone. So it is Shahil, first delivery, just play the sweep shot. This is a good thinking from Atif. Just play the normal sweep behind the square on the one side, where the captain of Gori Young Boys Pandeshwara Naufal collected that ball. Batsman had enough time to take the single. 38 for the loss of 6 wicket. We're in the last over of the innings remaining for the first innings. Shahil, second time is Polly mark. Beautiful delivery, almost slight leg cutter ball there. Batsman just played into that short extra cover. Abhilash collected the ball and once again batsman had enough time to take the single. Altaf Adur, the new man into the middle at number 8 for NM Mangalore, wearing jersey number 9. Atif went for the big cross-batted shot. The aggressive shot he attempted, he missed the line completely. There's a precious dot ball. Let us go 39 after the completion of 6.3. Exactly their scoring rate, 6.00. Atif went for the big shot straight down the ground. Karna
straight down the ground at mid, long on. Stop that ball. Batsman had enough time to take the single. Last 2 balls remaining of the innings. 40. Anything above 40, definitely fighting total for any team under this condition, under floodlight. Definitely good score. All is time in the air and gone. Altaf Aduru walking back to the pavilion. Shakir, Blue Planet, Kingdom of Saudi Arabia, Jubail is well wishing for in this wonderful cricket tournament. Arif, Accent, he also well wishing for in this wonderful cricket tournament. Now last 1 ball remaining of the innings. 40 for the loss of 7 wickets. Last 1 ball of the last over. It's Imran Munna from Jardagude. Is into the middle. Is such a technically well-sounded player. If someone like Munna coming at number 9, it's showing that the batting lineup of NM Mangalore, all 11 feel like a batters till Faisal to follow. He can bat. Faisal Bittubade. That's why it's such a phenomenal side. Mujib can bat. Bajpayee Express. So they have the very good batting lineup. All beautiful delivery. Shivaraj missed that ball. Maybe slight inside edge of the bat. Yes, it is. Innings number 1 completed. Exactly they scored 41. 42 is the target. Definitely is going to run a ball chase. Yes, we were going to start one last innings of the final. I heartily invite one of the finest voice of in this area, one of the best in South Kent district, Star Nawaz will join the commentary box for the second innings of the grand final. Heartily welcome Star Nawaz to the commentary box, and also thank you the management of NFC Angaragundi for giving me opportunity in the commentary box. Once again, thank you so much all the members of NFC Angaragundi. Yes, over to Star Nawaz for the last innings of in this wonderful cricket tournament. NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿ ನಡೆಸಿದ ಈ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಆಹಾರದ ಟೇಸ್ಟನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಆ ಕ್ಯಾಂಟೀನಿನ ಮಾಲಕರಾದ ಅಲಿಯವರೇ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ ನಜರ್ರವರೇ, ನವಾಜ್ರವರೇ, ನಿಮಗಿದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಚಾಲಕನ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಕೊನೆಯ 7 ಓವರಿನ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಹನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಬಯಸ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದಲೇ ಈ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल समद काटीपल्ला. NFC ट्रॉफी 2024 3 दिन के इस क्रिकेट के त्यौहार शुरुआत होने से पहले कब ये श्रृंखला शुरू होगा, कब हमें मौका मिलेंगे इस मैदान पर फ्लड लाइट की रोशनी के नीचे अच्छे अच्छे मैच देखने के, ये तो आशा के रूप पर हमने देखे हैं. तो पिछले 3 दिन पर 28 टीमों के बीच चला ये मुकाबला देखने के बाद अब आखिरकार 2 टीम फाइनल पर अपने आप को दिखाए हैं. गोरी यंग बॉयज पांडेश्वरा और NM जप्पू मैंगलोर अपनी क्षमता के अनुसार, हुनर के अनुसार, अपनी काबिलियत के अनुसार
ये दोनों टीम सेमीफाइनल पर बेहतरीन प्रदर्शन दिखाकर फाइनल पर विराजमान होने के बाद एनएम जप्पू मैंगलोर शुरुआत पर बल्लेबाजी करते हुए अब पीछे करेंगे 42 गेंदों पर 42 रन के इस लक्ष्य को गोरी यंग बॉयज पांडेश्वरा, और इस श्रृंखला के कामयाबी के लिए अपने शुभकामनाएं देते हुए शाकिर ब्लू प्लैनेट केएसए और आरिफ एसेंट केएसए, ये दोनों महारथियां अपने शुभकामनाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाएं देने वाले उन महारथियों को। तो आरंभिक बल्लेबाजी पर शुरुआत जब एनएम जप्पू के बल्लेबाजी दर्शक देख रहे थे तो कहीं ना कहीं रनों की वो रफ्तार देखने के बाद लगभग 7 ओवर की बल्लेबाजी पर 50 से 55 रन बनने की निरीक्षा रखे थे, लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे से गोरी यंग बॉयज पांडेश्वरा के गेंदबाजों की वो झलक, फयाज अड्डूर जैसे गेंदबाज, धनुष जैसे बेहतरीन उदयोन्मुख खिलाड़ी की वो बेहतरीन गेंदबाजी के प्रदर्शन, नौफल गोरी जैसे ऑलराउंडर के सक्षम बने वो गेंदबाजी के बाद बल्लेबाजी पर तो शुरुआत पर अजीम ने कुछ देर अपनी बल्लेबाजी को संभालने के प्रयास वहां पर किए, एक चौके लगाकर, और उसके बाद रियाज टीम की इस जिम्मेदारी को कंधे ऊपर उठाकर, क्योंकि ये फाइनल मैच है और इस फाइनल मैच पर जीतने के साथों साथ मिलने वाली ये चैंपियन के ताज, और इस एनएफसी अंगरगुंडी के परिसर पर इतिहास पर पहली बार इस तरह की श्रृंखला आप देख रहे हैं। तो कई गांवों पर आप देखे होंगे जब वो प्रतियोगिता के लिए भाग लेते हैं तो वहां पर बातचीत चलते हैं दर्शकों के बीच। पिछले साल गोरी यंग बॉयज ने ट्रॉफी जीते थे, पिछली बार एनएम ने जीते हैं यहाँ पर, लेकिन इस मैदान में इस तरह की कोई मिसाल नहीं दे सकते हैं। ये पहली दाखला होगा जिन टीम चैंपियन के रूप पर अपने आप को दिखाते हैं इस फ्लड लाइट की रोशनी के नीचे, तो ये अंडरआर्म के क्रिकेट के इतिहास पर भी, इस गांव के इतिहास पर आपके नाम वाकई सुनहरे अक्षरों में लिखे जाएंगे। जिस तरह से पत्थरों पर शिल्पी अपने उस मन के अंदर छुपे हुए कला को उस पत्थर पर लिखते हुए वो दिखाते हैं अमर होकर, कई सालों तक पत्थर के ऊपर लिखे हुए उस अक्षरों को जिस तरह से आप मिटा नहीं सकते, उसी तरह से यहाँ पर बनने वाली दाखलाएं इतनी जल्दी से नहीं मिटेंगे, और ये कोशिश अवश्य यहाँ पर बने हैं। रन आउट की अपील अंपायर से किए हैं और अंपायर तीसरी अंपायर की मदद, डायरेक्ट हिट के ये संभावना अब देखना होगा कि क्या गोरी यंग बॉयज के रियाज के लिए खतरा बनेंगे। अगर बनेंगे तो ये जश्न वाली बात अवश्य बन सकते हैं एनएम जप्पू के लिए। 42 गेंदों पर 42 रन के लक्ष्य, 42 बॉल्स 42 रन टू विन दिस मैच। गोरी यंग बॉयज पांडेश्वरा, ये रियाज के विकेट अब धाव पर, क्योंकि रियाज वर्तमान क्रिकेट पर उनके फॉर्म हो, क्रीज पर वो जितने समय बिताते हैं, जितने गेंदों की वो सामने करते हैं, उन तमाम गेंदों के खिलाफ दिए हुए जवाब को देखने के बाद पिछले 2-3 सीजन पर जब से गोरी यंग बॉयज पर वापस आए हैं रियाज गोरी, बीच पर कुछ समय इनकी गैर मौजूदगी, गोरी यंग बॉयज के उन भावनात्मक यादों के साथ जिस तरह से परेशानियों के वो छेड़छाड़ देखे हैं, वाकई वापस आने के बाद अपने नाम के साथ जुड़े हुए वो गोरी नाम को फिर समर्थन दिए हैं रियाज। तो नॉट आउट के करार, तो रियाज यहां पर सुरक्षित। अब तो राहत के साथ जुड़े हैं गोरी यंग बॉयज के अभिमानिया, क्योंकि ऐसे मैचों पर, इस फाइनल के बेहतरीन प्रकाशमान इस फाइनल मैच पर खेलने वाली दोनों टीमों के हर एक खिलाड़ियों को अभिमानियों की संख्या है। कुछ खिलाड़ियों को ज्यादा होंगे, कुछ खिलाड़ियों को कम, लेकिन वो कम वाला किसी भी मौके पर ज्यादा भी बन सकते हैं उनकी अभिमानियों के देखने के वो नज़ारे। तो रियाज फिर एक बार, और इस बार भी अच्छी गेंद रियाज एनएम। पिछले मैच में हमने जिक्र किए जब शमीर अब्बू एनएम के लिए अपने किरदार निभा रहे थे, सेवा कर रहे थे, तो हर बार हमने एनएम के साथ जितने भी ट्रॉफियां हमने देखे हैं, जीत के वो जश्न हमने देखे हैं, तो उस जश्न पर शमीर अब्बू के एक एक कारनामा, उनकी योगदान वाकई झलक के रूप पर हर एक अभिमानियों के आंखों के सामने आए हैं, क्योंकि शमीर अब्बू बिल्कुल भूलने लायक नहीं है एनएम के लिए। और उसके बाद अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए जिस तरह से वो सफ़र किए सऊदी अरेबिया के लिए, तो उसके बाद वो जगह भरने की एक ऐसे सवाल थे एनएम जप्पू के पास, तो उनके सहोदर ये रियाज शमीर अब्बू के विश्वास से भी ज्यादा बढ़कर दिखाए हैं।
आज निश्चित रूप से फक्र के साथ शमीर अब्बू भी ये मैच को देख रहे होंगे और वो अपने आप पर ये सोच रहे होंगे कि मेरी जगह भरने की वो जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि एनएम के लिए मुझसे बढ़कर एक सितारा मिले हैं। रिश्ते में चाहे बाय हो लेकिन एक क्रिकेटर के रूप पर सम्मान करेंगे रियाज को शमीर अब्बू। एनएफसी अंगरगुंडी के अध्यक्ष महोदय मुनीर जी, आप स्टेज के पास आए, स्टेज के ऊपर आकर इस मैच को देखें। इस श्रृंखला के तमाम योजनाओं के साथ आपके वो संयम भरे एक एक योजनाएं, कम बात काम ज्यादा वाले उस मिसाल वाले शब्द के लिए आपसे बेहतर मिसाल हम बिल्कुल नहीं ढूंढ सकते हैं। जरूरत के अनुसार आप बात करते हैं और ये योजना सलीम अंगरगुंडी के साथ जुड़ते हुए ये कामयाबी वाली ये 3 दिन के क्रिकेट श्रृंखला वाकई आपके प्रशंसा भरी वो कोशिश के अंजाम है। ये रियाज की ये गेंद, क्या जबरदस्त गेंदबाजी, वाह भाई वाह। 42 जैसे रन लक्ष्य के ऊपर देने के बाद फाइनल मैच पर रियाज की ये शुरुआत की ओवर, अब स्कोर बोर्ड पर देख लीजिए वो काले डॉट को जिस तरह से उन्होंने बिंदी गेंद बनाए हैं। आरंभिक 4 गेंद डॉट बॉल, 5वीं गेंद पर एक सिंगल रन बनने के बाद आखिरी गेंद फिर एक बार डॉट बॉल बनाकर फाइनल पर अपनी क्षमता को, पिछले कई सालों से रियाज के साथ जुड़कर जितने भी अभिमानियां एनएम मैंगलोर के मैच देखे हैं, आज दोबारा रियाज ने यह साबित किया कि मैं उस लायक हूं जितने आप प्रशंसा करते हैं, मैं उस लायक हूं जितने आप निरीक्षा करते हैं, मैं उस लायक हूं जितने आप विश्वास रखते हैं। किसी भी खिलाड़ी हो, हर एक मौके के इस्तेमाल जरूरत के अनुसार अवश्य होना चाहिए। आपके पिछले दिनों की साधनाओं को आज मापने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मानो कि अगर रियाज पिछले दिन में अच्छे प्रदर्शन दिए हैं और आज के दिन वो खर्चीले साबित हुए तो पिछले दिन के वो साधनाओं के अनुसार आज उनके लिए मार्क बिल्कुल नहीं मिलेंगे। आज के दिन बनाने वाले एक एक योजनाएं, एक एक प्रदर्शन नाम के साथ आपको देंगे इज्जत भी। तो इस बार भी डॉट बॉल, रियाज के वो जबरदस्त चमकने वाली ओवर के बाद टीम के कप्तान मुजीब एनएम, आरंभिक गेंद अंपायर ने कहा लीगल डिलीवरी, लेकिन गोरी यंग बॉयज के दोनों खिलाड़ियां सहमत नहीं थे इस निर्धार से, तो रिव्यू उन्होंने लिए। दोनों टीमों को एक एक रिव्यू दिए जाएंगे और उस रिव्यू पर अगर सफलता प्राप्त करते हैं, आपके मांग अगर सही है तो और एक मौका भी आपके पास होंगे। अगर आप गलत साबित हुए, आपकी ये रिक्वेस्ट गलत है, तो निश्चित रूप से ये मौका गंवाने के बाद रिव्यू के किसी भी निर्धार के साथ उस निर्धार को जांचने की मौका आपको नहीं मिलेंगे। आरंभिक ओवर पर केवल मात्र 1 रन बनने के बाद इस फाइनल मैच के रौनक, रोचक, रोमांचन बढ़ चुके हैं यहां पर। तो तीसरी अंपायर के निर्धार ऑन फील्ड अंपायर के साथ जुड़कर सहमत दिखाकर नो वाइड लीगल डिलीवरी के निर्धार। तो गोरी यंग बॉयज के इस रिव्यू पर गलत साबित हुए हैं गोरी यंग बॉयज के खिलाड़ियां। रियाज गोरी 6 गेंदों पर 1 रन बनाकर और दूसरी तरफ 1 गेंद पर 0 रन बनाकर प्रज्वल, हर एक गेंदबाज के खिलाफ जवाब देने वाले रियाज गोरी। इस मैच पर शुरुआत से ही जिस तरह से डॉट गेंद बनाए, रियाज के हर एक गेंद पर जिस तरह से वो विफलता प्राप्त किए, तो कहीं ना कहीं यहां पर बल्लेबाजी पर रियाज की न्यूनता की तरफ नजर डालने से ज्यादा मैं कहूंगा गेंदबाज के ऊपर रोशनी डालिए कि क्यों उन्होंने कितने अच्छे लाइन की गेंदबाजी की है। हर बार बीट करने के समय पर, गेंद को बिंदी करने के समय पर बल्लेबाजों की कमजोरी से ज्यादा गेंदबाजों की सक्षमता वहां पर काम आते हैं। उस बात पर हम ध्यान देने पड़ते हैं कि हाँ, रियाज सही थे। मुजीब के ये गेंद और प्रज्वल के लिए क्या जबरदस्त शॉट कहने होंगे यहां पर। आरंभिक ओवर के वो तमाम जितने भी निराशाएं हैं, कमजोरीपन, न्यूनताएं गोरी यंग बॉयज की बल्लेबाजी पर आपने देखे हैं। 6 गेंदों पर 1 रन बनने के बाद उस तमाम परेशानी को, कमजोरीपन को, स्कोरबोर्ड पर दिखने वाली वो कमीपन को रनों की अब भर दिए हैं प्रज्वल के इस सेक्टर ने। तो ये मौके की तलाश है प्रज्वल के। हर बार हर गेंद पर छक्का लगाने की कोशिश अच्छे खिलाड़ियां नहीं करते हैं। गेंद के हिसाब से जब गेंद चाटा लगाने की लायक बनते हैं तो बिल्कुल सिक्सर के रो पर चाटा देंगे। और इस बीच विकेट
क्रिकेट के कहावत के साथ जुड़ते हुए यह नजारा 90% मैचों में हमने देखे हैं, जब एक खिलाड़ी सिक्सर लगाते हैं तो उसकी तुरंत अगली गेंद पर विकेट गिरने की संभावना को आप निश्चित रूप से नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और आजकल कुछ खिलाड़ियां ऐसे हैं, कुछ गेंदबाजों के दाखला इस तरह से है कि उनकी गेंद पर छक्का अगर किसी बल्लेबाज लगाते हैं तो उसकी तुरंत अगली गेंद पर उन्हें आउट करने की दाखलाएं ओवरऑल क्रिकेट पर हमने देखे हैं। वीक्षक विवरणकार ये विश्वास के साथ कहते हुए कि अब देख लीजिए, यकीन मानिए, ये गेंदबाज अब विकेट लेंगे क्योंकि उनकी पहली गेंद पर सिक्सर लगाए हैं। तो हमने देखे तो वो सही साबित हुए, लाइव पर हमने देखे हैं। तो यहां पर भी मुजीब की पिछली गेंद पर जिस शैली के साथ, जिस काबिलियत के साथ छक्का चुराए हैं प्रज्वल ने, और उसके तुरंत अगली गेंद पर ही ईंट के जवाब पत्थर से देते हुए मुजीब ने यह साबित किया कि एनएम जयपुर जैसे टीम मुझे यूं ही नहीं बनाए हैं कप्तान। अगर वो कप्तान की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर सौंपते हैं तो मेरे पास भी वो क्षमता अवश्य होंगे। इस वजह से उन्होंने ये जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाले हैं। तो उस जिम्मेदारी तक मैं अगर नहीं पहुंच पाऊंगा तो उनके विश्वास के लिए मैं क्या जवाब दे पाऊंगा। और इतने तमाम दर्शक जो इस मैच को देख रहे हैं हमारे, हम क्या काबिलियत दिखा पाएंगे। वाकई जबरदस्त वापसी। फिर एक बार डॉट बॉल। आरंभिक ओवर पर 1 रन बनने के बाद जब सन्नाटा छाए थे, खामोशी देखने को मिले थे गोरी यंग बॉयज के डगआउट पर, लेकिन प्रज्वल के वो जो सिक्सर 8वीं गेंद पर, दूसरी ओवर के दूसरी गेंद पर लगाए हुए वो सिक्सर, वो सन्नाटा को आवाज पर बदल लिए थे प्रज्वल ने। लेकिन उसके तुरंत अगली गेंद पर प्रज्वल को आउट करने के साथों साथ दोबारा जब मुजीब अपनी लाइन और लेंथ के समर्थन दिखाने लगे तो वाकई ही वो सन्नाटा अब दोबारा छाए है नौफल के लिए। भाई दोबारा खेले जाओ नौफल जरूर, लेकिन सर्कल के अंदर ही फील्डर दौड़कर आसिफ अडूर तौफीक गेंद को उठाकर वापस कर दिए। तो ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 42 रन के लक्ष्य, 42 इज द टारगेट। 8 रन बनने के बाद अब बचे हुए 30 गेंद और रनों की जरूरत है 34 रन। हर गेंद के साथ रन बनाने के सवाल थे यहां पर गोरी यंग बॉयज पांडेश्वरा। और आज के दिन हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि गोरी यंग बॉयज के सफर को देखने के बाद, खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखने के बाद, इतनी आसानी से ये नहीं मानेंगे कि एनएम के खिलाफ वो हार मानेंगे, क्योंकि अब जीतने के आदत लग चुके हैं गोरी यंग बॉयज को। पिछले कुछ सालों पर खिलाड़ियों के कुछ बदलावन की वजह से और कुछ खिलाड़ियां सही समय पर नहीं मिलने की वजह से, अपने कायम सदस्यों के कुछ अत्यावश्यक काम के सिलसिले में दूर रुकने की वजह से गोरी यंग बॉयज पांडेश्वरा दर्शकों के लिए और उनके चाहने वालों के लिए वो फाइनल वाली बात तक पहुंचना बहुत ही कोशिश अवश्य किए थे, लेकिन किस्मत बिल्कुल साथ नहीं दे रहे थे। लेकिन पिछले सीजन के बाद लगातार हर मैच पर दाखिल होते ही उस श्रृंखला के फेवरेट टीमों में माने गए हैं गोरी यंग बॉयज पांडेश्वरा। तीसरी ओवर के पहली गेंद आतिफ रियाज के लिए लॉन्ग ऑन की एरिया पर गेंद को खेलने के बाद एक सिंगल रन। अब नौफल गोरी स्ट्राइक पर। तो ज्यादातर पिछले कई सालों से आप सुन रहे हैं ये गोरी नाम जिन खिलाड़ियों के नाम के साथ चिपक कर आप देख रहे हैं। मेरी नजर से 3 ऐसे खिलाड़ियां जो हमेशा गोरी नाम को अपने साथ लेकर चलते हैं और दर्शक भी बिना गोरी के नाम, इनके नाम के साथ जुड़कर अवश्य इनके सिंगल नाम पर बिल्कुल नहीं बुलाते हैं, इनके साथ गोरी के नाम जुड़ा कर बुलाते हैं। वो अव्वल नंबर पर है इकबाल गोरी। आज हमारे बीच बिल्कुल नहीं है। कुछ समय पहले इस दुनिया से अलविदा कहकर इकबाल गोरी आज तो निश्चित रूप से उनकी यादें बार बार आएंगे गोरी यंग बॉयज को। जब भी गोरी यंग बॉयज पांडेश्वरा ऐसे मकाम पर पहुंच जाते हैं, फाइनल जैसे बात पर अपने आप को दिखाते हैं, तो सुरेश अन्ना और इकबाल गोरी की यादें हमेशा करते हैं। 2 ऐसे अनमोल यादें हमेशा याद रहेंगे गोरी यंग बॉयज पांडेश्वरा के लिए, इकबाल और सुरेश अन्ना की याद।
और इकबाल के अलविदा कहने के बाद, सुरेश अन्ना इस भूलोक से अलविदा कहने के बाद, गोरी यंग बॉयज उनके लिए जितने भी सम्मान के रूप पर जितने भी ट्रॉफियां जीते हैं, उन ट्रॉफियों के साथ उनके नाम अवश्य लिए हैं। और दूसरे और तीसरे नाम आप क्रीज पर देख रहे हैं, नौफल गोरी और रियाज गोरी। किसी भी गांव पर हो, किसी भी जगह पर हो, इनको पहचानते हैं इनके टीम के नाम के साथ। तो ये सफल तब बने जब ये अपने टीम के साथ जुड़कर हमेशा अपनी टीम को इज्जत दिए, अपने टीम को हमेशा न्याय के साथ क्रिकेट दिखाए और विश्वास पर खड़े उतरे हैं। अपने टीम के किसी भी खिलाड़ी हो या प्रोत्साहकों को दर्द पहुंचाने जैसे कारोबार अब तक नहीं दिखे हैं, इस वजह से ये टिके हैं गोरी यंग बॉयज पांडेश्वरा के साथ। तो नौफल और रियाज दूसरे विकेट के साझेदारी पर 3 ओवर की समाप्ति बन चुके हैं, 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 13 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। तो 3 ओवर पर 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर फाइनल मैच एनएफसी अंगरगुंडी की प्रस्तुति पर अपने 30वीं साल के जश्न इस गांव के शान बनने के बाद शुरुआत पर तो इस अंगरगुंडी परिसर पर प्रियदर्शिनी जैसे टीम के नाम हमने सुने हैं। तो प्रियदर्शिनी जैसे क्रिकेट टीम के साथ इस गांव के कई सारे यादें हैं, वो अनमोल इमोशनल। और उसके बाद मदनी क्रिकेटर्स जैसे टीम भी इस गांव के साथ जुड़कर कई सारे यादें आज भी याद करते हैं लोग। लेकिन उन दोनों टीमों के खिलाड़ियां उनके खेलने के समय समाप्त करने के बाद जिम्मेदारियां जब कंधे से बढ़कर मिले, हद से बढ़कर मिले, तो थोड़ी सी दूरी प्राप्त करने के बाद प्रियदर्शिनी और मदनी टीम खिलाड़ियों की कमीपन महसूस करने के बाद जब युवक खिलाड़ियां, छोटी छोटी उम्र के युवक खिलाड़ियां इस अंगरगुंडी परिसर से निकल कर दिखने लगे, जिस तरह से बगीचे पर फूल खिलते हैं, तो वहां पर शुरुआत हुई ये एनएफसी अंगरगुंडी के सफर। दूर दूर तक अंडरम क्रिकेट खेलने वाले दूर दूर तक इस अंगरगुंडी परिसर के नाम रोशन किए हैं एनएफसी अंगरगुंडी ने। और आज सलीम अंगरगुंडी अध्यक्ष महोदय, मुनीर जी, और इसी तरह शमीर हो, सरफुद्दीन हो, फाइजल हो, इन महारथियों के बेहतरीन योजनाओं के साथ आज एक ऐसे ऐतिहासिक दिन यहां पर समाप्त होने जा रहे हैं। एनएफसी ट्रॉफी 2024 के आखिरी दिन ये फाइनल मैच आपके सामने। नौफल गोरी अब कदमों के इस्तेमाल करते हुए गेंद के साथ बल्ला जुटाने के प्रयास किए। 1 रन तो मिल चुके हैं, दूसरी रन की योजना सोच समझ कर अब अवश्य दिखाएंगे, क्योंकि ये जोड़ी जब तक क्रीज पर टिके रहेंगे। रनों की संख्या 42 लक्ष्य के ऊपर अब 15 बने हैं, तो अभी भी जरूरत है 27 रन। तो ये जोड़ी जब तक क्रीज पर रहेंगे, एनएम जप्पू के खिलाड़ी अभी जानते हैं कि हम जीत को अपने दिमाग पर सोच भी नहीं सकते हैं जब तक रियाज गोरिया और नौफल बल्लेबाजी करते रहेंगे। आतिफ, रियाज के गेंदबाजी अच्छी लाइन के साथ। रियाज तो मौका ढूंढ रहे हैं, गेंद थोड़ी सी ऊंचाई के साथ मिले उनके बल्ले पर, पिच से थोड़ी सी ऊंचाई भी अगर मिलते हैं तो रियाज गोरी अपनी आंखों के निशाने गेंद के साथ इस तरह से मिलाते हैं कि गेंद कहीं चूक न जाए। लेकिन गेंदबाजों की चालाकीपन, एनएम जप्पू जिस तरह से आज अपनी करारा लाइन दिखा रहे हैं और अंडरम गेंद की वो मतलब के साथ पिच के साथ जोड़ते हुए, पिच को घसीटते हुए गेंद निकल पड़ रहे हैं, और बल्लेबाजों के पास इतने समय भी बिल्कुल प्राप्त नहीं हो रहे कि वो गेंद को समझकर बल्लेबाजी करें। ये स्कोरबोर्ड गवाह है शुरुआत के 3.3 ओवर के बाद 21 गेंदों पर बने हुए रनों की संख्या 16 रन, और इनमें से लगभग 5-6 रन अतिरिक्त काटा पर मिले हैं। रियाज और इस बार गेंद को स्वीप करने के प्रयास, नौफल गोरी शॉर्ट स्क्वायर लेग की एरिया से फेडर गेंद को उठाकर जिस तरह से वो डायरेक्ट हिट बनाने के प्रयास किए, आखिरी मौके पर नौफल को भी लगा कि कई खतरा बन सकते हैं कि मेरे ये धीमेपन
कहीं बेजिम्मेदारी में ना बदल जाए, इसलिए और भी थोड़ी सी तेजी के साथ अपने सुरक्षात्मक रेखा को छूने के प्रयास किए। एक सिंगल रन के बाद रन बने हैं 17 रन एक विकेट के नुकसान पर। यह अगली गेंद और बेच लेग ब्रेक फॉर के अपील। और याद कीजिए नवाज के वो डायलॉग, 17 पे खतरा दोबारा साबित हुए हैं इस अंडरआर्म के मैदान में। हम बार बार इस बात को दोहराए हैं कि 17 जैसे नंबर जब स्कोरबोर्ड पर दाखिल होते हैं, खास करते हुए अंडरआर्म क्रिकेट पर, हमने इस बात को बार बार देखे हैं कि 17 जैसे नंबर जिस तरह से बल्लेबाजी वाली टीम को खतरा बनते हैं। तो इस बात को आप बदलने के लिए या इस बात पर थोड़ी सी जागृत मनोभाव के साथ उस 17 को पार करने की कोई योजना अवश्य बनाने होंगे आप, वरना यह कहावत कई असलियत पर न बदल रहा है। अब तक बने हुए घटनाएं ही गवाह है, असलियत पर बदलने के लिए पिछले मैचों पर बने हुए संभावना काफी होते हैं, क्योंकि हमने 90% हमने देखे हैं 17 नंबर पर विकेट खोते हुए। तो रियाज के पिछली ओवर पर केवल मात्र 1 रन, और इस ओवर पर भी देख लीजिए केवल 4 गेंदों पर 4 रन शुरुआत के, 5वीं गेंद पर यह विकेट की सफलता। क्या जबरदस्त जिम्मेदारी निभा रहे हैं यहां पर रियाज, निश्चित रूप से काबिले तारीफ। पुरस्कार तो इनके घर पर ढेर सारे पड़े होंगे जितने इन्होंने जीते हैं। मैन ऑफ द सीरीज जैसे पुरस्कार, कई सारे गिफ्ट हैम्पर्स भी इनके घर में अवश्य होंगे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज जैसे पुरस्कार भी इनके घर पर अवश्य जुड़ चुके हैं इनके अच्छे प्रदर्शन के लिए। तो रियाज अपने स्पेल के दूसरी ओवर की आखिरी गेंद, शिवराज के लिए, और एक सिंगल रन के साथ स्ट्राइक अपने पास बरकरार रखते हुए शिवराज 17 के वो खतरे वाली संख्या हटने के बाद अब रन बने हैं 18, 2 विकेट के नुकसान पर। बचे हुए अब 3 ओवर, 4 ओवर तो समाप्त हो चुके हैं। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर, 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, 42 इज द टारगेट। तो ऐसे में 18 गेंदों पर अब 24 रन। गौरी यंग बॉयज पांडेश्वरा जब दूसरी इनिंग्स की शुरुआत किए तो कहीं ना कहीं वहां पर 6 रन के आधार पर रिक्वायर्ड रन रेट जो नजर आए थे, तो गौरी यंग बॉयज के वर्तमान बल्लेबाजी के फॉर्म को देखने के बाद आज तो एनएम के अभिमानियों को भी लगा होगा कि आज शायद एनएम जप्पू मैंगलोर फाइनल पर रनों की संख्या कम जुटाए हैं, क्योंकि गौरी के खिलाफ, गौरी यंग बॉयज के वो सक्षम बड़ी खिलाड़ियों के खिलाफ ये रन काफी नहीं होंगे। लेकिन बदलावन देख लीजिए, जिस तरह से रियाज आरंभिक ओवर पर ही यह संदेश ही नहीं, चेतावनी भी दिए है गौरी यंग बॉयज पांडेश्वरा को कि आप इतने आत्मविश्वास पर मत गुजारिए कि एनएम के खिलाफ हर गेंद पर रन बनाकर आप जीत जाएंगे। ये मैं शुरुआत के झटके दे रहा हूं और बाकी बचे जिम्मेदारी मेरे साथीदार निभाएंगे, और बाकी बचे गेंदबाजों ने भी रियाज के उस योजना के अनुसार, कप्तान मुजीब के उस विश्वास के अनुसार, एनएम जप्पू के ऐतिहासिक खिलाड़ियों के वो विश्वास के अनुसार, खालिद हो, सादिक एनएम, मंसूर हो, सरफराज छप्पा हो, जितने भी लोग आज एनएम के साथ जुड़कर इस जीत को देख रहे हैं, उनके विश्वास पर तो हर एक गेंदबाज यहां पर खड़े उतरते हुए। आतिफ नाउफल गौरी उछालने की प्रयास अवश्य निभा रहे हैं, लेकिन मौका कहां दे रहे हैं आतिफ। डगआउट के आगे बैठने वाले खिलाड़ियां, वहां प्रेक्षक थोड़ी सी पीछे हटिएगा, बाउंड्री लाइन छोड़कर इस मैच को देख लीजिएगा। उस डगआउट पर जिन टीमों के खिलाड़ियां बैठे हैं, एनएम जप्पू के डगआउट, बाउंड्री लाइन को छोड़ते हुए आप इस मैच के वीक्षण पर बैठ लीजिए, क्योंकि फाइनल मैच है। आप जानते हैं कहीं आपकी वजह से समस्या ना खड़ी हो जाए। और बाहर हवा में गेंद, लेकिन इतनी भी दूरी पर नहीं कि फील्डर वहां तक पहुंच जाए। टिप्पक आने के बाद फील्डर के हाथ पर मिले हैं गेंद। विकेट की तलाश तो अवश्य है एनएम को, और दूसरी तरफ रनों की जरूरत भी यहां पर गेंद से बढ़कर गौरी यंग बॉयज पांडेश्वरा को। 21 बनने के बाद अब तक तो 4.4 ओवर पर 28 गेंदों पर 21 रन बने हैं, और अब बचे हुए 14 गेंदों पर 21 रन के दरकार। 14 बॉल 21 रन टू विन दिस मैच। जितने रन अब तक बने हैं उतने ही रन अब बाकी बचे 14 गेंदों पर। नाउफल गौरी के लिए स्लो बट डिलीवरी, थोड़ी सी
दिमाग के इस्तेमाल, मेंतोस वाली गेंद। आप जिस तरह से देखे हैं टीवी माध्यम पर कि मेंतोस खाओ और दिमाग की बत्ती जलाओ, यहां पर आतिफ ने एक गेंद पर अपने दिमाग की बत्ती जलाए। उन्होंने सोचा कि हर गेंद में तेज गति के साथ दे रहा हूं, तो कहीं ना कहीं वो तेज गति के साथ जुड़े हुए बल्लेबाज के एक्सप्रेशन, उनकी योजना, इस योजना पर थोड़ी सी गड़बड़ाहट दिखाने की जरूरत है, तो स्लोवर डिलीवरी के साथ नौफल को हराए। ओवर की समाप्ति। पांच ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब 12 गेंदों पर 20 रन, 20 फ्रॉम 12 बॉल्स, 20 runs to win this match from 12 balls. तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर रियाज अपने स्पेल के 2 ओवर पर 6 रन खर्च करते हुए एक शानदार विकेट भी सफलता के ऊपर पाए हैं। यह उनकी दृढ़ता है, कॉन्फिडेंटल गेंदबाजी। और उसके बाद टीम के कप्तान मुजीब, उन्होंने भी अपनी गेंदबाजी पर एक सिक्सर तो लगे थे वहां पर, और उस सिक्सर के साथ केवल 7 रन खर्च किए हैं मुजीब ने। यह कप्तान की जिम्मेदारी है कि अपनी गेंद पर सिक्सर लगने के बावजूद भी बाकी गेंदों को नियंत्रण के साथ दिखाकर उस सिक्सर के महंगीपन को कम करने की कोशिश पर सफलता पाना। और इस बार वाइड बॉल के इशारा अंपायर से, तो रिव्यू मांगते हुए अंपायर से इस वाइड बॉल के निर्धार के लिए। ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೈಸ್ ಅಂಗರಗುಂಡಿಯ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯ ಆಡುವ ಆ ಯುವಕರು ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಶುಭಕಾಮನೆಗಳನ್ನು, ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆ. तो रिव्यू जांचते हुए तीसरी अंपायर मुजीब अपने स्पेल की दूसरी ओवर के लिए आते ही पहली गेंद अंपायर वाइड के इशारा सुनाए थे, और इस निर्धार के खिलाफ रिव्यू मांगते हुए मुजीब, अब देखना यह है कि तीसरी अंपायर जांचने के बाद अब क्या निर्धार सुनाते हैं। और इस श्रृंखला के साथ जुड़ते हुए कई सारे संस्थाएं, कई सारे क्रिकेट के प्रेमियां अपने बेस्ट विशेष, शुभकामनाएं देते हुए रॉयल एंटरप्राइजेस तुकोटू हलेकोटे, और उसी तरह रास एंटरप्राइजेस मैंगलोर, विजन इंडिया मैंगलोर, इलेक्ट्रो वर्ल्ड एंटरप्राइजेस सूरतकल, गोल्डन एंटरप्राइजेस फरंगीपेटे, वफा एंटरप्राइजेस काटीपल्ला, न्यू नीड्स लकी स्कीम काटीपल्ला, इन तमाम प्रोत्साहकों के शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम संस्थाओं को आपके शुभकामनाओं के लिए. ಶುಭಕಾಮನೆಗಳ ಬಹಳಷ್ಟು ಹುರುಪು ಬರುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನ್ಯೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಈ ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಶುಭಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ NFC ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. सो इट्स लीगल डिलीवरी, तीसरी अंपायर के निर्धार. तो ऐसे में ये अंपायर अपनी निर्धार रिव्यू के साथ वापस लेते हुए, तो ऐसे में अब 11 गेंदों पर 20 रन की जरूरत. रिक्वायर्ड 20 फ्रॉम 11 बॉल्स. गोरी यंग बॉयज पांडेश्वरा और NM जप्पू के बीच चल रहा है यह फाइनल मैच. 1 लाख रुपए धनराशि के साथ चैंपियन को मिलेंगे NFC ट्रॉफी 2024 के ये ताज. नौफल गोरी उछाल दिए गेंद को. तो अब देखना यह होगा कि अंपायर क्या निर्धार सुनाते हैं.
जी हाँ, अंपायर की उंगलियां धीरे धीरे से आसमान की तरफ दिखाते हुए एनएम जयपुर मैंगलोर कैच के संभावना को वहां पर निरीक्षा कर रहे थे, लेकिन आपस पर दोनों फील्डरों के टकरावट शायद, जी हां, दोनों फील्डरों के ये टकराने की संभावना गोरी यंग बॉयज पांडेश्वरा के लिए 6 रन, और मैं कहूंगा यहां पर ये ग्लूकोज से कम नहीं है। पिछली गेंद पर डॉट बनाने के बाद थोड़ी सी निराशा अवश्य थे गोरी यंग बॉयज के चेहरे पर कि वो रिव्यू के निर्धार के बारे में, लेकिन उसके बाद नौफल गोरी जिस आक्रोश के साथ मुजीब की गेंद को ऊंचाई पर खेले, 6 रन के निर्धार मिलते हुए ग्लूकोज मिले हैं गोरी यंग बॉयज पांडेश्वरा को। और गोरी यंग बॉयज पांडेश्वरा के डगआउट के सामने खड़े रुके जितने भी खिलाड़ियां वहां पर बैठे हैं, आप कृपया थोड़ी सी दूरी प्राप्त करें वहां से, आपको ही समस्या होंगे। हम इसलिए दोनों टीमों के प्रोत्साहकों से हम गुजारिश करते हैं कि डगआउट पर केवल खिलाड़ियों को बैठने के मौका है। अगर आप बैठे हैं तो भी हम कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन ऐसा ना बैठे कि आपसे कोई समस्या ना खड़ी हो जाए। 10 गेंदों पर अब 14, नौफल गोरी के लिए। और इस बीच गेंद तो बीट बनाए थे, बिंदी बनाए थे, लेकिन विकेट कीपर आसिफ अड्डूर आउट की अपील करने पर तुले हुए थे, और इसके बीचों बीच एक सिंगल रन दौड़कर पूरा करने के बाद अब 9 गेंदों पर 13 रन, 9 बॉल 13। 2 ओवर पर 20 रन की जरूरत थे, तब आपसे कहा कि इतने भी आत्मविश्वास से मत गुजारिए कि 2 ओवर पर 20 रन बनाने की काबिलियत गोरी यंग बॉयज नहीं दिखाएंगे। इस सोच के साथ मत देखिए इस मैच को, क्योंकि आज के ये गोरी यंग बॉयज वाकई सवाल के लायक, हर सवाल के जवाब देने की लायक। तो अब धीरे धीरे से दर्शकों के दिल की धड़कनें तेज होने लगे हैं। तो 30 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद अब बचे हुए 8 गेंदों पर 12 रन, 8 गेंदों पर 12 रन, 4 गेंदों पर 8 रन तो बन चुके हैं एक सिक्सर के साथ। तो अब नौफल गोरी के उस सिक्सर के बाद निरीक्षा तो बढ़ते हुए गोरी यंग बॉयज पांडेश्वरा के दर्शकों में। और भी शानदार स्ट्रोक फाइजल की सर के ऊपर से खेलते हुए, लेकिन आतिफ चीता की तरह दौड़ कर आए गेंद के साथ, क्योंकि वो जानते हैं कि यहां पर अगर दूसरी रन की मौका देंगे तो गोरी यंग बॉयज जैसी टीम निश्चित रूप से ऐसे मौके के फायदा अवश्य उठाते हैं। तो अब बचे हैं 7 गेंद और 11 रन के दरकार, 7-11। शिवराज आखिरी गेंद पर एक सिंगल रन की योजना बनाए थे, लेकिन खुद पर नाराज, गेंद को बिंदी बनाने के बाद वो खुद पर नाराज हुए। तो अब बचे हुए 6 गेंदों पर 11 रन, 6 बॉल 11 रन टू विन दिस मैच। और आप देख रहे हैं ये फाइनल मैच, एनएफसी ट्रॉफी 2024 के आखिरी मैच, चैंपियन को तय करने वाली मैच। लगातार 3 दिन से रात की नींद को छुट्टी देकर इस मैच के साथ जुड़े हुए दर्शकों को उस चैंपियन के दर्शन देने वाली ये मैच, 28 टीमों के बीच चला इस मुकाबला। आखिरकार ये अंकमान्य क्रमांक के ये दोनों टीम अपने आप को फाइनल पर दिखाते हुए अब तो दोनों टीमों के लिए ये अहमियत है कि अब चैंपियन किस तरह से बनेंगे। 6 गेंदों पर 11 रन, अब तक 6 ओवर पर बने हैं 31 रन। तो सवाल यहां पर कि बना सकेंगे यहां पर 11 रन 6 गेंदों पर, और दूसरी तरफ रोकने की विश्वास होंगे गेंदबाज के पास, और इस मैच को जिताने की विश्वास अवश्य होंगे नौफल गोरी के दिल और दिमाग पर। और ऐसे मैच, इस तरह के प्लेटफॉर्म वाकई इन खिलाड़ियों को इतने नाम देते हैं कि आप बार बार अपने आप को प्रूव करने की वो तरीका, अंडरम क्रिकेट के छोटे छोटे गांव से आने वाले खिलाड़ियां जिस तरह से आपको रोल मॉडल मानते हैं, आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपकी तरह नाम कमाना चाहते हैं, तो दोबारा दिखाइए कि आप क्या कर सकते हैं ऐसे फाइनल मैच पर। गोरी यंग बॉयज पांडेश्वरा, दर्शकों के दिल की धड़कन,
दर्शकों के एक इमोशनल वाली एक अभिनव रिश्ते रखे हैं गोरी यंग बॉयज पांडेश्वरा से अंडरआर्म क्रिकेट के प्रेक्षक ने। और दूसरी तरफ एनएम जयपुर मैंगलोर, अपने अभिमानियों को आवाज देने की जरूरत ही नहीं है एनएम जयपुर मैंगलोर को, ना उन्हें कोई संदेश देने की जरूरत है कि हाँ हमारी मैच है आप आ जाओ देखने के लिए, क्योंकि दर्शक खुद इंतजार करते हैं कि आप कब मैदान पर उतरते हैं। 6 गेंदों पर 11 रन। नौफल गोरी इस बार गेंदबाज के सर के ऊपर से खेले, जब तक अजहरुद्दीन दौड़ते हुए गेंद के साथ जुड़कर इस गेंद को वापस कर दिए। किसी भी मौके में एक की जगह 2 रन की अवसर नहीं दे रहे हैं गोरी यंग बॉयज। अब फाइनल पर अपने आप को चैंपियन के रूप पर दिखाने के लिए शिवराज हो या नौफल गोरी, एक लंबी स्ट्रोक, एक ऊंचाई वाली वो आवाज भरी स्ट्रोक, निश्चित रूप से फाइनल पर आपको बड़ी बड़ी प्रशंसा दे पाएंगे। और इस पे शिवराज तो रियाज के हाथ से बिल्कुल नहीं बच पाए शिवराज, काफी निराशादायक वापस आते हुए। अब 4 गेंदों पर 10 रन। एक तरफ एनएम जयपुर के अभिमानियां अपने झंडे लहराने के लिए तैयार खड़े हैं, दिल और दिमाग से रंग बिरंगी शब्दों के साथ विजयोत्सव मनाने की तैयारियां कर रहे हैं एनएम जयपुर के अभिमानियां। और दूसरी तरफ गोरी यंग बॉयज पांडेश्वरा, वो जानते हैं कि हम लड़ सकते हैं, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं शुरुआत पर बनी हुई वो कमजोरीपन, रियाज की गेंदबाजी की असर यहां पर हम कह रहे हैं गोरी यंग बॉयज के ऊपर किस तरह से प्रभाव दिखाए, क्या परिणाम दिखाए हैं। 2 ओवर पर 6 रन 1 विकेट की सफलता। आतिफ की 2 ओवर केवल 9 रन, 9 रन वाली वो 2 ओवर की स्पेल, और कप्तान मुजीब के वो जिम्मेदारी भरी गेंदबाजी। अब आखिरी ओवर, फैजल, निर्णायक ओवर की जिम्मेदारी फैजल, हमेशा आखिरी ओवर की जिम्मेदारी फैजल के कंधों पर देखी है हमने। पहली गेंद आगे निकलते हुए उछालने के प्रयास किए, करना गोरी यंग बॉयज के शान है ये करना, और आने वाले दिनों पर तुलनाड क्रिकेट लीग के सारथी है ये करना। उर्वा के मैदान पर होगा वो झलक वाली क्रिकेट श्रृंखला, इस तुलनाड के फक्र है वो तुलनाड क्रिकेट लीग। तो अब तमाम व्यवस्थाएं हो चुके हैं, अब सिर्फ वहां पर क्रिकेट देखना बाकी करना के सारथ्य पर। नौफल इस बार उछालने के प्रयास, लेकिन विकेट के पीछे खड़े रुके आसिफ अडूर गेंद को इस तरह से अपने हाथ पर लिए कि कोई मिशन रोबोट गेंद को तेज गति के साथ उठाकर बेल्स पर लगाते हैं। अब देख लीजिए रिप्ले के उस नज़ारे को। तो हम दरख्वास्त करेंगे बेदरा मीडिया के ऑपरेटर से कि वो दोबारा जिस तरह से आसिफ अडूर उस गेंद को उठाकर विकेट पर लगाने के वो स्पीड, वो तेज गति के वो नज़ारे दिखाए हैं, ऐसे मौके में ये गंभीर वाली योजनाएं अवश्य होना चाहिए अपने टीम को चैंपियन बनाने के लिए। अब 2 गेंदों पर ये देख लीजिए लक्ष्म के गेंद को किस तरह से उठाए, और गेंद को बेस पर लगाते ही उनकी नजर बल्लेबाज के पैरों पर गिरे कि वो कहां पर खड़े हैं, तो तब जाना कि वो सुरक्षित स्थान पर है, तो धीरे से आगे बढ़ने लगे। और ये खासियत है आसिफ अडूर के, और वो याद जेडी बॉयज की ट्रॉफी पर सेमीफाइनल मैच पर केएफसी कोडिकल के खिलाफ आतिफ और आसिफ के जोड़ी बनाए हुए वो कमाल के जुगलबंदी, वो बेहतरीन पार्टनरशिप, मैदान पर खड़े रुके हर एक दर्शकों को मजबूर किए थे तालियां बजाने के लिए, इनको प्रशंसा करने के लिए। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि पार्टनरशिप के साथ अपने बल्लेबाजी दिखाने की क्षमता दिखाइए, तब जाकर आपके बल्लेबाजी सुधारण के तौर पर एक फिनिश आप दिखा सकते हैं, मैच फिनिशर वाली वो बात बनाइए अपने आप पर। तो अब यहां पर 2 गेंद 9 रन की जरूरत, एक सिक्सर इस गेंद पर जरूरत है गोरी यंग बॉयज को। नौफल के लिए खेले जरूर, लेकिन उनकी उम्मीद के अनुसार जुड़ी नहीं थे, और इस बेच करना दूसरे रन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। नौफल के विकेट रन आउट के रूप पर 8 रन, 8 more runs to win this match in the last ball.
और अब तो दर्शक 100% जीत के विश्वास के साथ है। लेकिन मैं दर्शकों को कह दूं कि जब आखिरी ओवर पर इस अंडरआर्म क्रिकेट पर 29 रन बन सकते हैं, 2 गेंदों पर 19 रन समाप्त हो सकते हैं, तो ये एक गेंद पर 8 रन भी नामुमकिन नहीं है। याद रखिएगा, अगर गेंदबाज वाइड दिखाते हैं, नो बॉल जैसे गलती करते हैं, तो ये 8 भी मुमकिन है। आखिरी गेंद पर अशरफ मुत्तूर की वो झलक, 2 गेंद पर 19 रन बनाने की वो साधना अभी भी भूली नहीं है दर्शक। तो आखिरी गेंद पर 8 रन वाली ये बात फैसल पर निर्भर है कि वो किस तरह से आखिरी गेंद को दिखा पाएंगे। द फाइनल मैच एंड द फाइनल डिलीवरी देख लीजिए यहां पर। क्या अब समझ में आएंगे कि मेरी आवाज के मतलब क्या है। हम इसलिए क्रिकेट के साथ जुड़ते हुए हमेशा कहते हैं कि आप नजरअंदाज मत कीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस मत रहिए। साथ जरूरत है आखिरी गेंद पर करना, स्ट्राइक पर। और इस बीच फिर एक वाइड। कहीं ये ना पूछिए कि आपकी जबान पर क्या है, कि किस तरह से आपने अनुमान लगाए हैं। ये अनुभव है हमारे पिछले 26 सालों से माइक्रोफोन के साथ जुड़ते हुए। इस दुनिया के किन किन जगहों पर हमने कदम रखे हैं, कहां पर आवाज दिए हैं हमने, अलग अलग तरीके हमने देखे हैं अजूबे के रूप पर मैच दिखते हुए। अब 1 बॉल 6 रन। ओह माय गॉडनेस, मौका तो बने थे यहां पर, लेकिन उस मौके के अंजाम नहीं दिखा पाए गौरी यंग बॉयज पांडेश्वरा। आखिरकार दर्शकों के निरीक्षा, एनएम जप्पू के अभिमानियों के वो चाहत समाप्त हुए हैं, पूरा हो चुके हैं। चैंपियन के रूप पर निकल आए हैं एनएम जप्पू मैंगलोर। कंग्रेचुलेशंस, यू आर द चैंपियन ऑफ एनएफसी ट्रॉफी 2024। एनएम जप्पू के सभी खिलाड़ियों को, टीम के साथ जुड़े हुए सभी महारथियों को एनएफसी अंग्रगुंडी की तरफ से हम शुक्रिया अदा करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके इस चैंपियनगिरी के लिए। दोबारा आपने इस अंडरआर्म क्रिकेट की दुनिया पर साबित किए हैं कि इतने बड़ी संख्या के अभिमानियां हमारे पीछे क्यों है, क्यों लोग दीवाने हैं एनएम जप्पू के। आप तो बार बार यहां पर साबित किए हैं। तो वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस एनएम जप्पू मैंगलोर फॉर द ग्रेट विक्ट्री ऑफ एनएफसी ट्रॉफी एंड द सेम टाइम गौरी यंग बॉयज पांडेश्वरा। 42 जैसे लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश आखिरी गेंद तक आपने दिखाए हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ छोटी छोटी बारीकी गलतियां आपके वो चैंपियन बनने के रास्ता पर कांटे बनकर आपके सामने आए। तो दूसरी स्थान पर खड़े रुकने के लिए गौरी यंग बॉयज पांडेश्वरा को हम तमाम दर्शकों की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन गौरी यंग बॉयज पांडेश्वरा, फाइनल तक विराजमान होकर दूसरे स्थान पर अपने आप को दिखाने के लिए, और इस प्रतियोगिता में हमारे साथ जुड़कर इस श्रृंखला को कामयाब बनाने वाले 28 टीमों को भी हम धन्यवाद कहते हैं। और उद्घाटन से लेकर इस समारंभ तक मुख्य अतिथि के रूप पर हमारे साथ प्रोत्साहन करने वाले सभी महारथियों को, स्पॉन्सर्स को, हर एक खिलाड़ियों को धनराशि के साथ प्रोत्साहन करने वाले उन प्रोत्साहकों को भी, और यहां पर इस श्रृंखला के कामयाबी के लिए एनएफसी अंग्रगुंडी के तमाम सदस्य मेंबर जितने भी परेशानियां उठाए हैं, जितने दिक्कत के साथ दिन रात के मेहनत सजाकर इस श्रृंखला को कामयाब किए हैं, एनएफसी अंग्रगुंडी के तमाम सदस्यों के साथों साथ इस गांव के हर एक नागरिक भी इस श्रृंखला के कामयाबी पर अपने प्रोत्साहन दिखाए हैं। तो सबको एक शब्द पर शुक्रिया अदा करते हुए इस श्रृंखला में आवाज देने की मौका देने के लिए सलीम अंग्रगुंडी और एनएफसी के अध्यक्ष महोदय मुनीर और उनके साथ खड़े रुके सभी महारथियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए आज हम समाप्त करते हैं एनएफसी ट्रॉफी 2024 के ये झलक हो। तो वंस अगेन द चैंपियन ऑफ द टूर्नामेंट एनएम जप्पू मैंगलोर सेलिब्रेटिंग इज विक्ट्री। और ये बनते हैं मैदान पर ये विजयी उत्सव। आपके हक के अनुसार ये चैंपियन के ताज को आप अपने पास सुरक्षित रखे हैं। और दूसरे स्थान पर गौरी यंग बॉयज पांडेश्वरा। तो बिना देरी किए हुए
स्टेज पर विराजमान हुए अतिथि अभ्यागत के समक्षम पर इस समारंभ को हम शुरुआत करते हैं। तो सभी खिलाड़ियां, सभी दर्शक स्टेज के सामने खड़े हो जाए और हम माइक्रोफोन ओवर करते हैं मेन स्टेज पर अब्दुल समद काटीपल्ला। इस आखिरी मकाम जो है समारंभ इस कार्यक्रम के पूरी निरूपण के साथ इस श्रृंखला के कामयाबी के वो हर एक कदम भी यहां पर विश्लेषण करेंगे और इस श्रृंखला के साथ जुड़े हुए हर एक प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रोत्साहकों को वो अपने शब्दों में धन्यवाद प्रकट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स ओवर टू अब्दुल समद काटीपल्ला फॉर द